everyone, welcome back to Nursing with Hansoya, where complex nursing topic become a super easy for every nursing student. So keep your notebook ready because this video can directly increase your score in NORCET, AIMS, ESIC, Railway and Staff Nursing exam. ठीक है. In today video we discuss about the fluid and electrolyte balance, like covering the most repeated MCQ, important one liner, easy memory trick and ECG related question, normal value in the easiest way. And trust me, after this video you will never forget the sodium, potassium, calcium and magnesium. So keep your notebook ready because this video can directly increase your score in a NORCETS, एम्स, ESIC, रेलवे एंड स्टाफ नर्स एग्जाम. ठीक है. चलो, first discuss about the fluid balance. First understand the basic knowledge about the fluid. ठीक है. Body fluid is essential for the transport of oxygen and nutrition, regulation of the body temperature, remove of the waste product and maintaining the blood pressure. Also essential for the cellular function. These are the main function of the body fluid. Now discuss about the type of the body fluid. Main two type of the body fluid, like intracellular fluid and extracellular fluid. Intracellular it means present inside the cell, and extracellular it means outside of the cell. Intracellular body fluid is about 1 by third of the total body fluid, and extracellular fluid including the interstitial fluid, plasma and lymph. ठीक है. These are the type of the body fluid. Now discuss about the electrolyte. So what is the electrolyte? Electrolyte is a one type of the minerals that carry a electrical charge and maintaining our body nerve conduction, muscles contraction, acid base balance and hydration. ठीक है. These are the main important electrolytes with normal value and function. ठीक है. Sodium, potassium, calcium, magnesium and chloride, these are the most important electrolyte of our body and most uh, रिपीटेड एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाते हैं. ठीक है. तो नॉर्मल वैल्यू क्या है, या इलेक्ट्रॉन का फंक्शन क्या है, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं. ठीक है. तो आप मेक श्योर करें कि जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप नोट और पेन लेके बैठे और इस वीडियो को टाइम लेके एंड तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टॉपिक और रिपीटेड रिलेटेड एमसीक्यू भी डाले हुए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, इजी फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. ठीक है. So first, sodium normal value is a 135 to 145 and main function is a water balance and nerve impulse. Potassium normal value is a 3.5 to 5 and main function is a heart and muscles function. Calcium normal value is a 8.5 to 10.5 and main function is a bone, clotting the blood, muscles contraction. Magnesium normal value is a 1.5 to 2.5 and main function is a neuromuscular function. Then chloride normal value is a 95 to 105 and main function is a maintaining acid base balance. So these are the important electrolytes with normal value and main function. ठीक है. नाउ डिस्कस अबाउट द फ्लूइड इम्बैलेंस. मतलब हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है वो इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है. तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, मतलब नॉर्मल वैल्यू से फ्लूइड डिक्रीज होता है. उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन. क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन. और उसका मेन रीज़न या कोज क्या हो सकता है? पेशेंट को बार बार वोमिटिंग होना, डायरिया, बर्न पेशेंट, फीवर या एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से बॉडी में से फ्लूइड है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है. अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन है तो साइन क्या देखने को मिलता है? तो ड्राई माउथ, थर्स्ट, लो बीपी कंडीशन, वीक पल्स देखने को मिलते हैं और डिक्रीज यूरिन आउटपुट भी देखने को मिलता है. अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन है तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? पेशेंट के अंदर फ्लूइड कम है तो उसकी वजह से फर्स्ट हम मॉनिटर द इनटेक आउटपुट, गिव द ओरल एंड आईवी फ्लूइड और डेली वेट मॉनिटर करेंगे और चेक द वाइटल साइन. These are the main management of the nursing management for a dehydration patient. Now discuss about the fluid volume excess.
अगर बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन, तो उसका मेन रीज़न होता है पेशेंट में रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर या एक्सेसिव गिव द आईवी फ्लूइड। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड होने का। ठीक है, साइन क्या क्या देखने को मिलता है, तो एडिमा, हाई बीपी, ब्रेथलेसनेस, वेट गेन। नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे पेशेंट को, बिकॉज ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड क्या है, ज़्यादा है, तो हमें अब फ्लूइड देना नहीं है, स्टॉप करना है। डायूरेटिक मेडिकेशन देंगे जिससे यूरिन आउटपुट बढ़ जाए और बॉडी में से फ्लूइड है वो क्या हो, डिक्रीज हो। मॉनिटर द लंग साउंड एंड डेली वेट हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। नाउ डिस्कस अबाउट द सम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो क्या होता है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैंने आगे ही आपको दिखाया कि ये सारे इम्पोर्टेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगर लो सोडियम लेवल है तो उसे हम बोलेंगे हाइपोनाइट्रेमिया। और किसी पेशेंट में हाइपोनाइट्रेमिया की कंडीशन है तो उसमें हमें कन्फ्यूजन, सीजर और मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगा। हाई सोडियम इट्स मीन्स हाइपरनाइट्रेमिया। और हाइपरनाइट्रेमिया के पेशेंट में थर्स्ट, इरिटेबिलिटी, ड्राई म्यूकस देखने को मिलता है। लो पोटेशियम कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। और उस पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा मसल्स वीकनेस, एरिथेमिया और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन। हाई पोटेशियम का मतलब है हाइपरकैलेमिया। और उस पेशेंट में देखने को मिलेंगे हमें कार्डियक अरेस्ट रिस्क, ईसीजी चेंजेस और मसल क्रैम्पिंग। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट में कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर लो सोडियम को क्या बोलते हैं या हाई सोडियम को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन ट्रिक मतलब आप कैसे याद रखेंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए। तो आपको सोडियम के लिए वाटर, पोटेशियम के लिए हार्ट और कैल्शियम के लिए बोन और मैग्नीशियम के लिए रिफ्लेक्सिस और नर्व को याद रखना है। इससे आप सुपर फास्ट रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और ये चारों इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट आप क्या कर सकते हैं, क्विक स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से टॉपिक से मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू फॉर कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू इज अ नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इज 125 to 135, 135 to 145 या 145 to 155 या 155 to 165। ठीक है, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल क्या है, मैंने आगे ही स्लाइड में आपको बता दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन से नॉर्मल वैल्यू और उसके फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सोडियम का नॉर्मल वैल्यू है वो 135 to 145। सोडियम क्या है, तो सोडियम इज अ मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। ठीक है, these are the main function of the sodium. नेक्स्ट इज द मेजर इंट्रासेल्युलर केशन। इंट्रासेल्युलर केशन कौन सा है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रासेल्युलर क्या होता है और केशन के बारे में। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम या कैल्शियम। तो इसमें इंट्रासेल्युलर मेजर केशन है वो पोटेशियम आएगा। पोटेशियम is mainly present inside the cell and is important for muscles contraction, nerve conduction and cardiac function। ठीक है, अगर आप अपनी एबिलिटी चेक करना चाहते हैं, आगे मैंने जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो एबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर केशन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फॉस्फेट। तो मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर केशन है सोडियम। और सोडियम इज अ मेन इलेक्ट्रॉन क्या है आउटसाइड द सेल एंड हेल्प टू रेगुलर फ्लूइड बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, फोर्थ वन इज अ हाइपोकैलेमिया में कोज, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, इम्बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन
हाइपोकैलेमिया किसे कहते हैं, हाइपरकैलेमिया किसे कहते हैं, ठीक है। किसकी कंडीशन बढ़ जाने की वजह से या डिक्रीज हो जाने की वजह से ये कंडीशन होती है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो हाइपोकैलेमिया में कॉज हाइपरटेंशन, एरिथेमिया, हाइपर एक्टिविटी या पॉलीसिंथेमिया। तो इसका आंसर है एरिथेमिया, बिकॉज लो पोटेशियम अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, लीडिंग टू द इरेगुलर हार्ट बीट एंड मसल्स वीकनेस। और इसकी वजह से इसका मेन आंसर क्या आएगा, एरिथेमिया, ठीक है। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या है, डिक्रीज द लेवल ऑफ द पोटेशियम। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विथ हाइपरकैलेमिया इज एट अ रिस्क फॉर। अगर पेशेंट में हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है तो क्या रिस्क हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है या लीवर फेलियर हो सकता है। तो इसकी वजह से पहले आपको ये पता होना चाहिए हाइपरकैलेमिया क्या है, किसकी वजह से होता है और उसका मेन फंक्शन क्या है, तो ही आपको पता चलेगा कि रिस्क ऑफ पेशेंट क्या होगा, ठीक है। हाइपरकैलेमिया का मतलब है एक्सेस पोटेशियम कैन सीवियरली डिस्ट्रीब्यूट द कार्डियक कंडक्शन एंड मे लीड टू द fetal एरेथेमिया और कार्डियक अरेस्ट। जो हाइपरकैलेमिया है मतलब कि बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, पोटेशियम का लेवल एक्सेस हो जाता है और इसी की वजह से जो कार्डियक एक्टिविटी है उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है और कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज अ टिटानी। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टिटेनी की कंडीशन हो सकती है, हाइपरनाइट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया या हाइपरमैग्नेसीमिया। तो उसका आंसर आएगा हाइपोकैलेमिया। क्यों, लो कैल्शियम इंक्रीज द न्यूरोमस्कुलर एक्सिस्टिबिलिटी कोजिंग द मसल स्पाज्म, टिटानी एंड पॉजिटिव चॉस्टिक साइन, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है हमें इनबैलेंस ऑफ द कोज, मतलब कि कौन सी इलेक्ट्रॉन, तो जो कैल्शियम है उसका लो लेवल की वजह से हमें टिटानी की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज अ नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल। तो नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना है, 1.5 टू 2.5 या फिर 2.5 टू 3.5, 3.5 टू 5 या 5.5 टू 7। तो उसका आंसर है 3.5 टू 5। नॉर्मल पोटेशियम इज असेंशियल फॉर अ प्रॉपर कार्डियक रिदम एंड मसल्स फंक्शन। आपको याद रखना है ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द फ्लूइड बैलेंस इज। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि पेशेंट में जो फ्लूइड बैलेंस है वो प्रॉपर है, ब्लड प्रेशर की वजह से, पल्स रेट की वजह से, डेली बॉडी फ्लूइड की वेट की वजह से या रेस्पिरेटरी रेट की वजह से। तो डेली बॉडी वेट चेक करने से हम चेक कर सकते हैं, करते हैं कि फ्लूइड बैलेंस प्रॉपर है कि नहीं। रैपिडली क्या करना है आपको, जो वेट है उसको चेक करना है। नेक्स्ट वन इज एडिमा इज अ कॉमनली सीन। ऐसा कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट में एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। तो आगे मैंने एक्सप्लेन किया था, जिस पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम है वो एक्सेसिव मतलब बढ़ जाए उसमें एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या है, तो फ्लूइड ओवरलोड लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द टिश्यू कोजिंग द स्वेलिंग और एडिमा। हमारे बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टिश्यू है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा और स्वेलिंग और एडिमा की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ विच सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, लाइक आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, और इसमें कौन कौन सी कंडीशन आती है, कौन कौन से फ्लूइड आइसोटोनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.45% NS, 3% NS, 0.9% NS और D10 वाटर, D10 वाटर है वो। तो आइसोटोनिक फ्लूइड है यहाँ पे 0.9% NS, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ प्लाज्मा एंड डन नॉट कॉज अ फ्लूइड शिफ्ट बिटवीन द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोटोनिक फ्लूइड आएगा 0.9% NS।
नेक्स्ट वन इज अ डिहाइड्रेशन कॉमनली कोज। मेनली डिहाइड्रेशन कैसे पेशेंट में कॉमनली कोज देखने को मिलता है? ब्रेडिकार्डिया पेशेंट में, हाइपोटेंशन में, वेट गेन में, या एडिमा में? तो हाइपोटेंशन पेशेंट में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है बिकॉज जो पेशेंट है वो लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम रिजल्टिंग इन द लो ब्लड प्रेशर एंड टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। ठीक है, टेकिकार्डिया मतलब तो डिक्रीज हार्ट रेट। Next one is a which electrolyte is important for a muscles and cardiac function? ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो मेनली फंक्शन करता है मसल्स एंड कार्डियक के लिए? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड या फॉस्फेट? तो इसमें आएगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स एंड हार्ट मसल, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा पोटेशियम, जो इम्पोर्टेंट है फॉर मसल्स एंड कार्डियक फंक्शन के लिए। नेक्स्ट वन इज अ चॉस्टिक साइन इज सी इन अ, मतलब चॉस्टिक साइन किस कंडीशन में देखने को मिलता है? हाइपरकैलेमिया, हाइपर नाइट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया या हाइपर मैग्नीसियमिया? तो चोस्टिक साइन है वो हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है? टैपिंग ओवर द फेशियल नर्व कोजिंग द फेशियल मसल्स ट्विस्टिंग इन अ लो कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाने की वजह से जो फेशियल नर्व है उसमें हमें ट्विस्टिंग देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं चोस्टिक साइन। ठीक है, हाइपोकैलेमिया में ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव क्वेश्चन है। Next one is a which electrolyte imbalance cause a Piketty wave in a ECG? ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसकी इम्बैलेंस की वजह से ईसीजी में जो टी वेव है वो पिक लेवल पे आ जाता है? हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया या हाइपोनाइट्रेमिया? तो इसमें आता है हाइपरकैलेमिया। क्यों? हाई पोटेशियम अलर्ट द कार्डियक एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कोजिंग द टॉल ऑफ द पिक टी वेव। ठीक है, जो पोटेशियम है उसकी हाई कंडीशन की वजह से कार्डियक इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना है? 4 to 6, 6 to 8, 8.5 to 10.5 या 12 to 40? तो उसमें आएगा आंसर नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल इज 8.5 to 10.5 mg/dl। कैल्शियम इज असेंशियल फॉर अ बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव वॉमिटिंग कॉमनली लीड टू। अगर किसी भी पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो क्या हो जाएगा? बॉडी में से फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्यों? वॉमिटिंग कोज एक्सेसिव लॉस ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लीडिंग टू द डिहाइड्रेशन। वॉमिटिंग की वजह से पेशेंट में से फ्लूइड क्या होगा? लॉस होगा और डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, next is the nurses should monitoring which parameter closely during the IV potassium administration? नर्स को क्लोजली मॉनिटर करना है ड्यूरिंग द आईवी पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पेशेंट को जब आईवी पोटेशियम देते हैं तब क्लोजली क्या कौन सा पैरामीटर है जो आपको क्या करना है? क्लोजली मॉनिटर करना है? विजन, ईसीजी, हियरिंग या रिफ्लेक्सिस? ठीक है, तो जब भी पेशेंट को पोटेशियम आप दे रहे हैं तो आपको ईसीजी क्या करना है? क्लोजली मॉनिटर करना है। क्यों? पोटेशियम डायरेक्टली अफेक्ट द हार्ट रिदम, therefore ईसीजी मॉनिटरिंग इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब पोटेशियम डायरेक्टली अफेक्ट करता है हार्ट के रिदम को। नेक्स्ट वन इज अ हाइपरनाइट्रेमिया कॉमनली कोज। कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसमें मेन कोज है हाइपरनाइट्रेमिया? ठीक है, मूल स्किन, एक्सेस सलाइवेशन, थर्स्ट और ब्रेडिकार्डिया? तो इसमें आएगा थर्स्ट। क्यों? हाई सोडियम लेवल कोज अ सेल्यूलर डिहाइड्रेशन लीडिंग टू द इंटेंस थर्स्ट एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। इसी की वजह से कॉमन कोज देखने को मिलता है हाइपरनाइट्रेमिया में थर्स्ट। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल कितना है? 0.5 to 1, 1.5 to 2.5, 3.5 to 5 या 5 to 7?
तो नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल कितना है? 1.5 टू 2.5। मैग्नीशियम क्या करता है? रेगुलेट द न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी और एंजाइम फंक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस? जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो रिलेटेड टू वॉल्यूम एक्सेस है? वॉल्यूम एक्सेस का मतलब है हाइपर वॉल्यूमिया, मतलब कि जो बॉडी में जो फ्लूइड है, ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन हम बोल सकते हैं। बर्न, डायरिया, कंजेक्टिव हार्ट फेलियर या वोमिटिंग। ठीक है, तो उसमें आएगा कंजेक्टिव हार्ट फेलियर। कंजेक्टिव हार्ट फेलियर की वजह से फ्लूइड है वो रिटेन होगा ड्यू टू द पुअर कार्डियक पंपिंग लीडिंग टू द एडिमा एंड फ्लूइड ओवरलोड। ठीक है, तो जो भी पेशेंट है उसमें कंजेक्टिव हार्ट फेलियर है तो उसमें एक्सेस फ्लूइड देखने को मिलेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द माय चैनल। एंड ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है।